Not everyone who is nice to you deserves your trust. Okay, not everyone who is fun to be around deserves too much attention into your life. Okay, some people, if you let them get too close into your life, into your emotions, into your decisions, your secrets, they will somehow drain you, use you, manipulate you, and you won't even notice until the damage is already done. Today I'm giving you 17 types of people you should make distance from. Not people to hate, not people to fight with, just people you should never get emotionally deep with. Okay? You should never get too emotionally involved with or never share your secrets, your personal life with them. Okay? Watch till the end because number, well, you will know when you see it. Here is the thing, you can be polite with someone, work with them, even be friendly without even opening up your whole life to them. Okay, the mistake most people do is they get confused between these two statements. First, this person is this person is around me a lot. Okay, ये मेरे आसपास बहुत रहता है. And second is this person deserves my respect. These two are different things. Okay, ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम इंसान में ही हो. ज़रूरी नहीं कि जो आपके पास बंदा हमेशा रहता हो वो आपका ट्रस्ट डिजर्व करता हो. ओके, दिस टू आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. ओके, सो the points or the 17 types of people I'm going to share with you, these are the ones you should make distance from. Okay, इसका मतलब ये नहीं है आप कोई बुरे इंसान हो जाओगे. ओके, या आप बहुत रूड हो गए, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स सेल्फ प्रोटेक्शन. ओके, आप खुद का ध्यान रख रहे हो, आप खुद के इमोशंस का ध्यान रख रहे हो, खुद का टाइम का ध्यान रख रहे हो. ओके, और खुद का ध्यान तो रखना ही चाहिए. ओके, so the first type is I am always right kind of person. Okay, no matter what you say, they will twist the conversation until they are right and you are wrong. Okay, ऐसे लोग होते हैं ना, ध्यान से अगर सोचो तो तुम कुछ भी बोलो वो तुमको हमेशा गलत प्रूफ करने में लग जाएंगे और खुद को सही प्रूफ करने में. ओके, उनसे कुछ भी बात करो, एवरी कन्वर्सेशन विल टर्न इनटू अ डिबेट एंड यू आर फोर्स्ड टू लूज दैट डिबेट इन फ्रंट ऑफ देम. ओके, इनके बहुत इनके पास जाओ, इनसे दोस्ती करो, इनके आसपास रहो, इनको टाइम दो, तुम इनके साथ समय बिताओ, अपने लाइफ का कुछ टाइम इनके साथ दो, एंड यू विल start doubting your own decisions, your own judgments over time. Second type is the defamer. Okay, talks, they will talk you down behind your back. Okay, they will say to other people that you are not that great, and so that they can look better in comparison. Okay, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे और आपको नीचे दिखाएंगे और खुद बड़ा फील करने के लिए. ओके, तो ऐसे लोगों से दूर रहना. द गिल्ट ट्रिपर्स. ओके, तुम उनसे डिसएग्री करो, किसी भी चीज़ में उनसे डिसएग्री कर सकते हो, एंड इट विल एंड्स विथ यू अपोलोजाइजिंग. ओके, हमेशा तुम्हें ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनको कभी लगेगा ही नहीं कि उनकी गलती है. ओके, इवन यू डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, you just said your tell your told your opinion. Okay, and they will make you realize that you are the guilty one by disagreeing with them. Okay, they are masters एट फ्लिपिंग द ब्लेम. तुम्हारे पर ब्लेम शिफ्ट कर देंगे, तुम्हें लगेगा यार मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मेरी गलती. वो कभी लगेगा नहीं उनकी गलती. ओके, फोर्थ वन इज द इटर्नल विक्टिम. ओके, नथिंग इज एवर दियर फॉल्ट. उनकी कभी गलती नहीं होती. ओके, उनका जॉब लॉस हो गया, उनका किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गया, उनका ब्रेकअप हो गया. ओके, उनका कुछ भी, उनकी लड़ाई हो गई, हमेशा उनको लगेगा ही नहीं कि उनकी गलती है, किसी ना किसी और की गलती होगी हमेशा. ओके, तुम समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ. Get too close to them and you will end up being their next scapegoat. Next is the love bombers. They will shower you with compliments and closeness way too fast. At first, it will feel amazing at first, okay? But it's often a fast track to make you emotionally dependent on them quickly. और emotionally dependent किसी में नहीं होना चाहिए. Next is the chronic one uppers. Okay, you share any good news, any bad news, anything. Somehow their situation is always bigger, always harder, always better.
ओके, दे कांट लेट यू हैव अ मोमेंट। तुम कुछ भी इनसे अच्छी चीज़ शेयर करो, ये तुम्हें और अच्छी चीज़ बता देंगे कि मेरे साथ तो भाई इससे भी अच्छा हुआ। समझ रहे हो? तुम उनसे कुछ बुरी चीज़ शेयर करो, तुम उनसे बोलोगे यार, कोई किसी लड़की ने अपने बॉय मतलब अपनी फ्रेंड से बोला कि मेरे बॉयफ्रेंड ने यार मेरे साथ ऐसा कर दिया है, इतना बुरा कर दिया है, तो वो बताएगी बस बहन मेरे बॉयफ्रेंड ने तो और ऐसा कर दिया। समझ रहे हो? तुम बताओगे यार मेरे साथ भाई आज ऐसा बुरा हो गया मेरे साथ, वो बोलेगा भाई मेरे साथ तो और बुरा हो गया। समझ रहे कैसे लोगों की बात कर रहा हूँ? तो इन लोगों से दूर रहो। नेक्स्ट वन इज द सीक्रेट कलेक्टर्स। ओके, दे विल पुश यू टू ओपन अप टू फास्ट। होते नहीं कि भाई और बताना, भाई और बताना, फिर क्या हुआ, फिर इसमें क्या, अच्छा ये चीज़ क्या है। बहुत ज़्यादा तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ओके, बहुत जल्दी। नॉट आउट ऑफ रियल क्लोजनेस कि उनको तुम्हारे बारे में जानना है कि भाई तुम ये बंदा कैसा है, सो क्या चीज़ें पसंद है, नहीं नहीं नहीं, but so they can collect this data, this information, and this and they can use them against you later. Okay, तो ऐसे लोगों से भी इनको पहचानो और थोड़ा इनसे दूरी बना के रखो। नेक्स्ट वन इज द आइसोलेटर्स। ओके, they will slowly pull you away from your friends, from your family, from your boyfriend, girlfriend, or whatever, your best friend, and they will make you dependent on them and only on them. दूसरों से तुम्हें दूर करेंगे, खुद के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट बना लेंगे तुम्हें, ताकि तुम सिर्फ उन पे डिपेंडेंट हो जाओ और बाकी लोगों से तुम्हें दूर करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी पहचानो। नेक्स्ट इज द फ्लैटरर विथ एन एजेंडा। दे विल प्रेज यू हैविली। ओके, बहुत तारीफ तुम्हारी करेंगे। बिफोर आस्किंग फॉर अ फेवर, आस्किंग फॉर मनी, आस्किंग फॉर अ डिसीजन दैट फेवर्स ओनली देम। ओके, तुम्हारा यूज़ करेंगे, तुमसे चीज़ें करवा लेंगे तुम्हारी तारीफ करके। समझ रहे हो? कुछ लोग होते हैं ना भाई, फ़ोन करते हैं तुमसे 5 मिनट बात करेंगे, बात करने नहीं होती उनको, कुछ काम होता है, और उस बात करने के बाद भाई ऐसा काम था, ये कर दोगे क्या? समझ रहे हो? गाली दे के उनका फ़ोन काटो। नेक्स्ट इज द साइलेंट ग्रज होल्डर्स। ओके, दे विल नेवर टेल यू व्हाट्स रॉन्ग। ओके, व्हाट हैपेंड, व्हाट एक्चुअली रॉन्ग, जस्ट दे विल गो cold and make distance from you, okay, and makes you guess and chase them and beg for them for answers. Okay, ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम उनसे डिस्टेंस बना लो ऐसे लोगों से, तो दूसरों को भी यही लगे कि तुम साइलेंट ग्रज होल्डर हो, तुमने बिना बोले यार उनसे डिस्टेंस क्यों बना लिया, ऐसा कर रहे हो क्या? तो इसके बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो अभी, बस ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे थोड़ी दूरी बना के रखो बस। नेक्स्ट वन इज द पब्लिक चार्मर प्राइवेट क्रिटिक। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। ओके, बहुत सही हैं, बहुत हर उनका सब चीज़ अच्छा है उनका। ओके, बट अकेले में जब वो तुम्हारे साथ होते हैं तो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं तुमसे ही, है ना, कि तुम भाई ऐसे हो, तुम ये चीज़ डिजर्व नहीं करते, तुम तो ऐसे हो, तुम्हें ये नहीं पता। समझ रहे चीज़ें ना? तो ऐसे लोगों से भी दूर रहो। नेक्स्ट वन इज द फेक हैप्पी कॉम्पिटिटर। ओके, दे विल स्माइल व्हेन यू विन, but that smile doesn't reach their eyes. Okay, they will quietly jealous of you, and they are hoping you to fail next time. Next one is the hot and cold type. They will seem warm and intense one day and the other day distant and cold for no clear reasons. होते नहीं, एक दिन बहुत उनसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं, बढ़िया बातें कर रहे हैं, अगले दिन ऐसा लगेगा तुमसे नाराज हो गए हैं। समझ रहे हो? कुछ बेवकूफ़ बताते हुए हैं कि भाई लड़कियों से ऐसे बात करनी चाहिए कि एक दिन उनसे बहुत प्यार से बात करो, बहुत अच्छे से उनसे बिहेव करो, अगले दिन उनको रूड हो जाओ उनसे। ओके, ठीक से बात मत करो, उनको इग्नोर करो, तो ऐसी लड़कियां तुम्हें पसंद करने लगती हैं। इस बकचोदी से दूर रहो और ऐसे लोगों से भी दूर रहो। नेक्स्ट वन इज द क्रोनिक कंप्लेनर। ओके, दे विल कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग, एवरी न्यू प्रॉब्लम, एवरी न्यू पर्सन, एवरी न्यू डिजास्टर, दे विल कंप्लेन अबाउट इट। ओके, कि भाई ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हर एक चीज़ पे कंप्लेन ही करते रहेंगे, क्योंकि तुम बहुत क्लोज जाओगे एंड तुम इनके जैसा बनना शुरू कर दोगे, तुम भी हर चीज़ में कंप्लेन करने लगोगे। नेक्स्ट इज द बाउंड्री टेस्टर। Now this is the very important point. Okay, these type of people you have to find out and kick out from your life. Okay, they will test your boundaries, they will push just a little every time, just a little too far every time. Okay, they will never return any borrowed item, they will ask you personal questions a little too personal. Okay, a little too invasive, they will make a joke about you a little too mean. Okay, and they will test how you will tolerate. Okay, होते नहीं ऐसे लोग जो तुम्हें
सपोज तुमने उनको मना किया कि भाई ऐसा मत करो, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, और वो जानबूझ के वही करते हैं और टेस्ट करते हैं तुम कितना ज़्यादा टॉलरेट कर रहे हो, या किसी चीज़ में उनको पता है कि ये चीज़ तुम्हें नहीं पसंद, तुम उसको नहीं चाहते हो, वो चीज़ वही करेंगे और हर बार थोड़ा ज़्यादा करेंगे ताकि तुम्हारी टॉलरेंसी उस चीज़ को लेकर बढ़ जाए, ओके, और ताकि वो चीज़ तुमसे कर पाए। तो ऐसे काइंड ऑफ मैनिपुलेटर से तुम्हें बहुत दूर रहना, ओके, इनके आसपास ही मत जाओ, इनसे, समझ रहे हो? जो लोग तो बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं हमेशा ना, कि तुमको पता है तो बाउंड्री क्या है, तुमने बना के रखी है ऑलरेडी, लेकिन उसको बार बार वो पार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम्हें यार सोचने की जरूरत है ऐसे लोगों के बारे में। नेक्स्ट वन इज द रेस्क्यूअर हु नीड्स टू बी नीडेड. They will constantly help you, but in a way that makes you dependent, then makes you dependent on them rather than actually solving your problem, because your need for them is what makes them feel valuable, okay. तुम्हारी हेल्प करेंगे बट एक्चुअल में तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, वो कुछ इस तरीके से चीज़ें करेंगे जिससे तुम उन पे डिपेंडेंट होने की मतलब होने लगोगे, समझ रहे हो? एंड द लास्ट वन इज द मिरर्स. These are the persons who agrees with everything you say, okay, whatever you say they will agree with you, okay, and they will mimic your opinions, they will show interest in your interests a little too perfectly, okay, and too fast. हर चीज़ से तुम्हारे वो एग्री करेंगे, जो बोलोगे उनको बोलेंगे हाँ भाई सही है, जो तुम बोलो कुछ भी अपने ओपिनियन दो, अपने एक्शंस कुछ डिसीजंस उनको बताओ, हर चीज़ में तुमको बोलेंगे हाँ भाई सही है, तुम सही करो, हर एक चीज़ में तुमसे एग्री करने लगेंगे। और इन लोग को पहचानना बहुत ज़रूरी है, किसके, क्योंकि इस चेहरे के अंदर जो लोग होते हैं ना, उनको देखना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम उसी अकॉर्डिंग एक्ट कर सको। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू डोंट नीड टू कट all these people out of your life, okay, completely, and that's even not possible. They might be your family member, they might be your colleague, co-workers, okay, or someone from your circle or your best friend, okay. What you have to do is manage the depth of your relationship, okay. You have to manage how you share your emotions, कितना ज़्यादा उनमें तुम डीपली इन्वेस्टेड हो, कितना ज़्यादा उनसे चीज़ें शेयर करते हो तुम्हारी रिलेशनशिप कितनी गहरी है, इसको तुम मैनेज कर सकते हो, है ना। कुछ लोगों से तुम completely कट आउट नहीं कर सकते, ओके, पॉसिबल नहीं होता। Keep it friendly, keep the relationship friendly, keep it functional, okay, but stop handing them your secrets, your thoughts, okay, your opinions, और मतलब carefully you have to manage relationships with these type of people, okay. ऐसे लोगों से अपने बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स, बहुत ज़्यादा अपने वल्नरेबल मूवमेंट्स या कोई अपने बिग डिसीजंस, अपना प्लान बहुत ज़्यादा शेयर मत किया करो, और analyze their patterns over time, okay, not just one day. किसी का भी एक दिन बुरा हो सकता है यार, तो उसके हिसाब से तुम उसे नहीं जज कर सकते। तुम ओवर द टाइम उनके पैटर्न्स को नोटिस करो कि रोज ये कैसा बिहेव कर रहा है, इसका पैटर्न क्या है, ये इसका कैरेक्टर क्या है, ये बंदा ही ऐसा है क्या। देन डिसाइड करो कि किस कैटेगरी में आता है, कैसे लोग। स्टार्ट नोटिसिंग पैटर्न्स बिकॉज दियर पैटर्न्स विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दे आर, ओके। एंड द बिगेस्ट टेस्ट फॉर ऑल is this: you have to notice how you feel when you spend time with them, on you when you are around them, okay। तुम्हें फील कैसा होता है उनके साथ समय गुजार के, उनके आसपास रह के, तुम्हें ड्रेन्ड फील होता है, तुम्हें छोटा महसूस होता है, तुम्हें अपने डिसीजंस पे शक होने लगता है, ओके, तुम बुरा फील करते हो, तुम्हारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आते हैं, ओके, तुम समझ रहे हो, तुम्हें कैसा फील हो रहा है उनके सामने रह के, उनके साथ रह के, सबसे बड़ा टेस्ट है ये। अगर तुम्हें इसका आंसर भी पता नहीं है कि तुम्हें अगर नेगेटिव चीज़ें फील हो रही है, तुम्हें बुरा फील हो, तुम्हें लग रहा है मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए, मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूँ, तो उसके आंसर के पीछे मत भागो कि ये क्यों हो रहा है। दैट्स योर आंसर, दैट इज द पर्सन यू हैव टू मेक डिस्टेंस फ्रॉम। आंसर मत ढूंढो कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो दैट्स 17 टाइप ऑफ पीपल यू कीप हेल्दी डिस्टेंस फ्रॉम। यू डोंट नीड टू बी पैरानॉइड अबाउट एवरीवन, बट यू डू नीड to notice patterns and trust that gut feeling when something feels off.